Good afternoon, class. This is really very disappointed situation this time that after passing 10 minutes only, 13 participant has joined this meeting. I don't know why you people have such a non-serious attitude towards your studies. You know that there's only 40 minutes session we have, and we have 40 minutes session and 10 minutes you already consume in joining the class. If you people have internet connection problem, then you must be try to connect before before 3. I am going to lock my room now, so nobody will be allowed to participate in this meeting after 10 minutes. Always keep in your mind. Okay. And meanwhile, I am also going to mark your attendance because I noticed that many people send me their attendance in WhatsApp group while they are not taking their classes. So if I am missing someone, I will call the name whose attendance has been marked. If someone who is missing in the attendance, just let me tell. It's Afia Kamal 13401. 13405 Kainat, 13406 Rubab Salim, 1307 Adil Gulam Rasool, 13409 Bushra Asar, and then it's 13412 Aliza Nasir, 13414 Muhammad Uzair, 13417 Muhammad Hazik Anwar, 13418 Nadam Ayub, and then 13421 Uzair Abbas, 13423 Mehak Javed, 13424 Aksa Satar, 13427 Sumeras. And if anybody else in this meeting whose attendance isn't marked yet, just let me know. No one? Okay, I'm going to submit this attendance now. If once it would be submitted, then I am not be eligible to change any attendance. So if someone is missing in this attendance, just let me know. Okay, that's fine. If and please tell your class as well. I will not behave much. I will not be such attitude that you are taking enough time to join your class. Anyhow, first of all, you all have to explain me is MySQL has been installed on your machines. Class, could you please confirm me? Yes, ma'am. Yes, ma'am, install हो गया था. So the 12 participant of your class already has MySQL in your machines now. Is it true? So do you have your system with you at the moment? Yes, ma'am. Everyone has that. Everyone has their laptops with yourself. No, ma'am. No, ma'am. So how you will do your practical? Class, you should always keep in your mind if Tuesday and Wednesday is going to be used as a practical day, then definitely you should all have your laptops with you, so that if I am asking you to do some work, then you should share your screen because it's a virtual environment. Me and you are such like that we are in a classroom, and if you are I am giving you uh, an assignment and to do that in the same time, you should do it meanwhile. So only one student has laptop with her.
सिर्फ मैम, एक मेरे के पास पास भी है। लैपटॉप है? हाँ मैम, मेरे पास भी है। हाजी के पास है, और चले हैजिक, और किसने बताया था कि उसके पास है? अक्सा थी क्या? लीजिए, मैंने बताया था। कायनात थी। अच्छा चले, कायनात, आप दोनों के पास जो सिक्वल है वो आप लोगों के सिस्टम पे डाउनलोड है इस टाइम, तो आप उसको प्लीज रन कीजिएगा। ओके मैम। और बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इस टाइम लैपटॉप नहीं है, टेक नोटबुक एंड पेंसिल विद यू एंड राइट डाउन अ प्रोग्राम जिसके अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था डेटाबेस क्रिएट करना। आप लोगों ने इस टाइम मुझे लिख के देना है, एक स्टेटमेंट्स लिख के देनी है कि आपने एक स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करना है विच है स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी एंड देयर मार्क्स इन दैट। ठीक है। जो थर्ड नंबर पे पॉइंट है, सेट स्टूडेंट आईडी एज अ प्राइमरी की, जस्ट इग्नोर दैट आई बिकॉज आई नो यू कांट डू इट, but you first have to create a schema with the name of student and then create a table with the name of student. Well, I will change it because you could be confused in that with the name of database and the table. ठीक है? So what you have to do, आपने सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करनी है स्टूडेंट नेम की, उसके बाद आपने एसटीडी का टेबल क्रिएट करना जिसके एट्रीब्यूट होंगे स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी एंड मार्क्स। ठीक है। आपको मैंने हिंट देती चलो कि जब आपने एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर करने हैं तो आपने एट्रीब्यूट्स का नेम और उसके साथ में उसकी डेटाबेस जो है वो सॉरी डेटा टाइप जो है वो मेंशन करनी है। ठीक है। वंस यू विल फिनिश दैट जस्ट लेट मी नो। जो लोग नोटबुक के ऊपर लिखेंगे वो मुझे क्या कहते हैं अपना कैमरा ऑन करके उसको दिखाएंगे, और जो लोग जो हैं वो अपने सिस्टम पे कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी स्क्रीन शेयर करें। आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, आपको जैसा भी आता है, ठीक आता है, गलत आता है, लेकिन जस्ट आपके माइंड में इस टाइम जो है आप वो राइट करें। ठीक है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? यस मैम।
So anybody did that? किसी स्टूडेंट ने किया है तो बता दें प्लीज। कुछ तो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आया ही होगा ना। Can anybody share their screen or either open their camera to show me? Ma'am, how to create table? Acha ji. So okay, let me explain. First of all, when you have to create a database, for your database you should write create database. ठीक है, whatever database you want to create, you can write their name over there. I have student on database already, so for example I write employee over here. ठीक है, so and then what I will do, my internet connection is unstable. Can you people see my screen? Yes, ma'am. Okay. Okay, once you will create a database, you have to be select it and then click on the lighting icon. It will be execute and you can see on the bottom a database of STD has been created. Okay, after that what you have to do, you have to create a table. I ask you to create a table. And what type of table it could be? What I told you, what type of table it is? क्लास प्लीज रिस्पॉन्स करें कि कौन सा टेबल हमने क्रिएट करना है। स्टूडेंट का, ठीक है। आपने उसके बाद क्या करना है, आपने स्टूडेंट आपने कहना है कि टेबल क्रिएट करें स्टूडेंट का, ठीक है। टेबल क्रिएट करने के बाद क्या करें कि उसका कर्सर ऑन कर दें, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि आपको जब डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद ड्रॉप करना हो, डिलीट करना हो, तो यू हैव टू जस्ट राइट ड्रॉप डेटाबेस. Okay, first of all, this is a refresh button. If you will click over here, you can find there is a database with the name of STD over here. ठीक है, तो आपके पास आपने जब भी अपना ये स्कीमा STD का या स्टूडेंट का क्रिएट हो जाएगा, आपने जब उसका टेबल क्रिएट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको हाईलाइट करना है, तो आपके पास नीचे नेम आ जाएगा जो स्कीमा आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपने उस स्कीमा की डेटाबेस को उसके अंदर जो है वो टेबल क्रिएट करना है। एट द मोमेंट द स्कीमा स्टूडेंट इज शोइंग ओवर हियर, इफ आई विल क्लिक ऑन सिस, देन यू कैन सी अ सिस इज क्रिएटिंग ओवर हियर, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट जो स्कीमास हैं ये ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं करूंगी ड्रॉप लिस्ट को, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने डेटाबेस को डिलीट करना हो तो आपके पास क्या क्या क्यूरी होती है कि आपने लिखना होता है ड्रॉप डेटाबेस STD, ठीक है। तो आप जब इसको दोबारा से सिलेक्ट करने के बाद ये लाइटिंग का आइकन क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डिलीट हो जाएगी, ठीक है। आपने इसको क्रिएट टेबल को क्रिएट कर लिया, उसका नाम बता दिया आपने। नाम बताने के बाद जब आपने पेंसिल्स में जाना है, इट्स गिविंग अ एरर ओवर हियर, सो आई विल डिलीट इट, ठीक है। आपने इसके स्टूडेंट की टेबल को क्रिएट करने के बाद हम इसका नेम इन्फो टेबल भी रख सकते हैं, एनी नेम यू कैन पुट इट ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आना है और आपने आपसे सबसे पहले क्या कहा था कि स्टूडेंट आईडी क्रिएट करनी है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी को अभी आप रहने दें, वो थोड़ा मैं आपको बात एंड पे बताऊंगी। सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट नेम क्रिएट करना है। फर्स्ट नेम आपने उसके एट्रीब्यूट का नेम लिखना है, इसके अंदर कैरेक्टर होते हैं तो इसकी डेटा टाइप क्या होगी, वर्कर, ठीक है। आप इसको स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर जिसमें मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। वर्कर्स की डेटा टाइप है। हम क्या करते हैं, जब हम डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम डेटा टाइप के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं कि वो कितने बिट्स जो हैं वो उसको असाइन की जाएंगी मेमोरी के अंदर। तो मेमोरी के अंदर हमने इसको 20 बिट्स असाइन करवा ली,
ठीक है। नेक्स्ट आप मोस्टली नेम्स के लिए आपके पास हालांकि नेम्स जो हैं वो मोस्टली 10 लेटर्स के होंगे। अगर फर्स्ट नेम है तो 5-6 लेटर का मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन हम उसमें 20 बिट्स हमने उसको डिक्लेयर करवा दिए। इसी तरह नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि लास्ट नेम का जो है वो आपके पास होना चाहिए एट्रीब्यूट, तो उसकी डेटा टाइप भी क्या होगी, वर्कर होगी मेरे पास, और मैं उसको भी जो है वो 20 बिट्स असाइन कर दूंगी। वन थिंग आई फॉरगेट टू पुट कॉमा एट द एंड, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हाँ, और क्या था, मेरे ख्याल एड्रेस था या सिटी था, ठीक है। आपने एड्रेस की जो है वो एट्रीब्यूट का नाम रखा। एड्रेस एट्रीब्यूट के अंदर डेटा टाइप कौन सी है उसकी, वर्कर है, ठीक है। वर्कर डेटा टाइप के अंदर आपके पास फिर आप, क्योंकि आपके पास एड्रेस जो है उसमें वेरिएबल्स भी होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज भी और कैरेक्टर भी, तो आपके पास ये इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 30 कर लेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपके पास एड्रेस के बाद आपके पास अगर सिटी नेम है तो सिटी नेम भी आपके पास उसकी डाटा टाइप क्या होगी, वर्कर होगी, और आपने उसको भी जो है वो कुछ बिट्स असाइन कर दी, ठीक है। अब अगर आपके पास मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल, तो मार्क्स एट्रीब्यूट्स में मार्क्स आपके पास होल नंबर होता है, उसकी डाटा टाइप क्या होती है, इंटीजर, ठीक है। आपने वो डिक्लेयर कर दी। डिक्लेयर करने के बाद आपके आवाज पास, नहीं आ रही। सॉरी मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ maybe there's a problem with my मैम internet आवाज नहीं आ रही। connection because it's telling that is it clear now? मैम एड्रेस से समझ नहीं आई, एड्रेस से दोबारा समझा दें। एड्रेस जो है बेटा वो भी आपके पास वर्कर डाटा टाइप का ही होगा। उसकी रीजन ये है कि आपके पास उसमें वेरिएबल्स भी आते हैं और कैरेक्टर्स भी आते हैं, ठीक है। आप लेकिन आप उसमें जो डेटा टाइप है वो आपने वर्कर डिक्लेयर कर दिया, उसको बिट्स हमने थोड़ी ज्यादा इसलिए दे दी कि आपके पास एड्रेस किसी का लेंथी भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सिटी है, सिटी की आपके पास डेटा टाइप वर्कर ही है, और हमने सिटी नेम्स को 15 बिट्स असाइन कर दिए। बिट्स असाइन करने की रीजन मैंने आपको बताई है कि हम एलोकेट कर लेते हैं कि हमारे पास मेमोरी में कितनी जगह है। जैसा कि अगर मैं कहती हूँ कि मुझे क्लासरूम में 3 चेयर्स चाहिए, तो मैं पूरी क्लास में वो 3 चेयर्स का एरिया जो है वो मैं यूज कर लेती हूँ, और बाकी की क्लासरूम खाली रह जाएगी तो वो हम किसी और पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये बिट्स जो हैं वो डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास सबसे ऊपर थी स्टूडेंट आईडी का एक हमने कहा था कि एक एट्रीब्यूट होना चाहिए, और स्टूडेंट आईडी के एट्रीब्यूट जो है आईडी नंबर 1, यानी कि अगर रोल नंबर है तो 1 2 होगा। और हमेशा ये भी याद रखिएगा कि स्पेस नहीं होती एट्रीब्यूट के नेम के बीच में, ठीक है। ये आपके पास इंटीजर टाइप की डाटा टाइप होगी, प्लस हम इन्हें इसको प्राइमरी की बनाना है तो हम इसके अंदर एक और चीज ऐड कर देंगे कि उसकी वैल्यू जो है वो नल नहीं हो सकती, ठीक है। तीसरा हम इसके अंदर एक और चीज ऐड कर लेंगे कि इसके अंदर ऑटो इंक्रीमेंट होता जाए। ऑटो इंक्रीमेंट का क्या फायदा होगा कि आपके पास ऑटोमेटिकली रोल नंबर जो है वो जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर ये 3 चीजें थी। जब आपने जो है हमने क्या थर्ड पॉइंट में कहा था कि स्टूडेंट आईडी को जो है वो आपने प्राइमरी की असाइन करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले लिखेंगे कि प्राइमरी की, अब प्राइमरी की के बाद आपने किसको असाइन करनी है उसका नाम आपने पेरेंथेसिस के अंदर लिख लेना है, ठीक है, उस एट्रीब्यूट का। एंड दैट इज आपके पास कैपिटल एस में था तो सेम ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास प्राइमरी की जो है वो स्टूडेंट आईडी की एडजस्ट हो गई है। तो इसी तरह मैंने आपको ये एग्जांपल स्लाइड्स में भी दी हुई हैं, ठीक है। आपके पास टेबल क्रिएट हुआ, आपके पास स्टूडेंट आईडी थी, उसमें फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम था, एड्रेस था, सिटी और मार्क्स थे, ठीक है। आई फॉरगेट टू एंड माय टेबल, लेट मी, आपने जब टेबल ये पेरेंथेसिस खोलनी है तो आपने इन पेरेंथेसिस को बंद भी करना है, ठीक है। तो हम उसके लिए दोबारा से एंड पे इसको करेंगे और साथ में सेमी कॉलन लगाएंगे। आप चाहें तो पेरेंथेसिस जो है वो नेक्स्ट लाइन पे भी खोल सकते हैं, दैट इजंट मैटर, ठीक है। मैम आपकी वॉइस
मैम वॉइस फिर नहीं आ रही है। I don't know why this problem is happening today. Maybe अब आपको क्लियर आई है? यस मैम अब ठीक है। चलें, मैं आपको स्लाइड से क्लियर कर देती हूँ। आपके पास सेम ये वैसा ही टेबल था। जब आपने इसको सिलेक्ट करके फिर आप इस इलेक्ट्रिक आइकन पे क्लिक करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे अपनी क्यूरी को, तो आपके पास ये ग्रीन साइन आ जाएगा कि आपका टेबल जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डेटाबेस सिलेक्ट नहीं करते हैं, स्कीमा को सिलेक्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर आपके पास एरर आता है और वो एग्जीक्यूट नहीं होती। जब वो आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें एक टेबल क्रिएट हो गया है जिसकी की स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस जो है वो एट्रीब्यूट्स नेम है। ठीक है, आपने जब इन एट्रीब्यूट्स के अंदर वैल्यू एंटर करनी है तो यहाँ पे ये देखिए टेबल को एडिट करने का बटन है। आपने इस पे क्लिक करना है और आप कोई भी वैल्यू जो है वो टेबल के अंदर इंटर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे टेबल के अंदर इंटर किए हैं। क्लियर? अब आपके पास इसको करने के बाद आपने ये अप्लाई का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है एक स्क्रीन ओपन होगी जिसके अंदर आपके पास रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू के लिए मौजूद होगा आपका एसक्यूएल स्क्रिप्ट। इसके अंदर सेम किस आपने कहाँ पे जो है वो उसको एंटर किया, आपके पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स थे और प्लस आपके पास जो है आपने उन एट्रीब्यूट्स के अंदर कौन कौन सी वैल्यू असाइन की, that is all mentioned over there। ठीक है, उसके बाद आपने इस अप्लाई के बटन पे क्लिक किया और आपके पास एक नई विंडो ओपन हुई, इसको आपने क्लोज कर दिया और इसमें वो आपको एग्जीक्यूट कर रहे हैं SQL स्टेटमेंट को। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा था टेबल क्रिएट करने का मामला। नेक्स्ट अगर आपने उस टेबल को दोबारा से चेक करना हो तो उसके पास हमारे पास जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है कि आपने जिस एट्रीब्यूट को आप देखना चाहते हैं, लाइक अगर मैं सिर्फ मार्क्स देखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सिलेक्ट मार्क्स फ्रॉम और यहाँ पे स्टूडेंट का जिस टेबल से आपने उठाने उसका नाम आएगा। ठीक है, आपके पास इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि पूरे का पूरा टेबल रिट्रीव करें तो उसमें आपको नेम मेंशन कॉलम की करने की जरूरत नहीं होती है, जस्ट यू हैव टू राइट अ स्टार ओवर देयर, तो आपके पास पूरा टेबल जो है वो शो हो जाता है, जिसकी एग्जांपल आपके पास यहाँ पे सामने मौजूद है। ठीक है, आई राइट अ क्यूरी विद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो आपके पास ये सारा जो है टेबल वो डिस्प्ले हो गया। क्लियर? नेक्स्ट अगर आपने इसमें से सिर्फ कोई एक आधा जो है वो कॉलम उठाना हो तो आपके पास ये देखें इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ्रॉम स्टूडेंट किया तो आपके पास एग्जीक्यूशन के बाद उसने सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स मुझे जो है वो शो किए हैं। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लें। क्लास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। Is that clear to all of you? आपको क्लियर हो गया सबको? एक पार्टिसिपेंट हमारा जो है वो जा चुका है, that's fine। Might be they are thinking that attendance तो हो गई है तो no need to be listen what our teacher is saying to us। Okay class, so does anybody has any question? Please ask me। Is that मैम ये clear? ट्राई करेंगे तो फिर देखेंगे, अगर हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो कल पूछ लेंगे कोई प्रॉब्लम हुई तो। चलें ठीक है, कल भी हमारा प्रैक्टिकल का लेक्चर है, प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि कल आप अपने सिस्टम लेके आएं ताकि हम इन्हीं की प्रैक्टिस करें और साथ में एक आधी क्यूरी और सीखें और ताकि जो है वो हमारा स्टार्टिंग पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर क्यूरीज हम कोई भी होगी उसको हैंडल कर सकेंगे सिचुएशन। ठीक है, हैव अ नाइस इवनिंग and I have marked your attendance, so no need to be send it in group। Thank you very much।